Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to lecture 13 of industrial pharmacy. In this lecture we will be starting a new topic, that is of mixing. So let's first begin with the importance of mixing. There are very few pharmaceutical products that contain only one component. In the vast majority of cases, several ingredients are needed to ensure that the dosage form functions as required. If, for example, a pharmaceutical company wishes to produce a tablet dosage form containing a drug which is active at a dose of 1 milligram, other components, for example, a diluent, binder, disintegrant, and lubricant will be needed both to enable the product to be manufactured and for it to be handled by the patients. Whenever a product contains more than one component, mixing or blending stage will be required in the manufacturing process. This may lead to ensure an even distribution of active components, an even appearance, or that the dosage form releases the drug at the correct site and at the desired state. The unit operations of mixing is therefore involved at some stage in the production of practically every pharmaceutical preparation, and control of mixing processes is of critical importance in ensuring the quality of pharmaceutical products. The importance of mixing is illustrated by the following list of products for which invariably mixing process of some kind are used. For example, tablets, capsules, sachets, and dry powder inhalers. Mixtures of solid particles are actually dealt with. In linctuses that are mixtures of miscible liquids, emulsions and creams that are mixtures of immiscible liquids, and pastes and suspensions that are dispersions of solid particles. बहुत कम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें एक कंपोनेंट होता है. वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम मिक्स करके एक डोजेज फॉर्म या डिज़ायर्ड डोजेज फॉर्म फॉर्मुलेट करते हैं. जैसे कि अगर कोई कंपनी एक टैबलेट डोजेज फॉर्म बनाना चाहती है तो एक ड्रग जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी डोज अगर 1 मिलीग्राम है तो डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स लाइक डाइल्यूएंट, बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट्स और ल्यूब्रिकेंट्स ज़रूरी होते हैं उस ड्रग को टैबलेट में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो इजीली पेशेंट एडमिनिस्टर कर सके और मैन्युफैक्चरिंग में और हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो. जब भी प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं तो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग की स्टेज रिक्वायर होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर. ये इसलिए होती है ताकि इन इवन डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर किया जा सके एक्टिव कंपोनेंट्स की और प्रोडक्ट की इवन अपीयरेंस हो डोजेज फॉर्म में, और ड्रग की रिलीज़ करेक्ट साइट पर डिज़ायर्ड रेट के अंदर अचीव की जा सके. मिक्सिंग एक यूनिट ऑपरेशन है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्शन के अंदर, प्रैक्टिकली हर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर. मिक्सिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना एक क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑप्टिमल मिक्सिंग के ऊपर या कंट्रोल्ड मिक्सिंग के ऊपर डिपेंड करती है. मिक्सिंग की इम्पॉर्टेंस इन लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट से वाज़ेह है जहाँ पर डिफरेंट मिक्सिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं क्योंकि इन तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल, सैशेट्स, ड्राई पाउडर और इनहेलर्स. ये सॉलिड पार्टिकल्स के मिक्सचर्स हैं. लिंक्टसेस मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर्स हैं और इमल्जन्स और क्रीम्स इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर्स हैं, जबकि पेस्ट और सस्पेंशंस डिस्पर्जन्स हैं सॉलिड पार्टिकल्स की. हाउ मिक्सिंग इज डिफाइंड. Mixing can be defined as a unit operation that aims to treat two or more components initially in an unmixed or partially mixed state so that each particle or molecule of the component lies as nearly as possible in contact with the unit of each of the other components.
If this is achieved, it produces a theoretical ideal situation that is a perfect mix. However, this situation is not normally practicable, is actually unnecessary, and indeed is sometimes undesirable. How closely it is attempted to approach the ideal situation depends on the product being manufactured and the objective of the mixing operation. For example, when mixing a small amount of a potent drug in a powder mix, the degree of mixing must be of a high order to ensure a consistent dose. Similarly, when dispersing two immiscible liquids or dispersing a solid in a liquid, well-mixed product is required to ensure product quality or stability. In case of mixing lubricants with granules during tablet production, however, there is a danger of over-mixing and the subsequent production of a weak tablet with an increased disintegration time. मिक्सिंग को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम इसे इस तरह से कहते हैं कि मिक्सिंग एक यूनिट ऑपरेशन है जो एक या दो कंपोनेंट की तरफ एम करता है, जहाँ पर इनिशियली अनमिक्स्ड फॉर्म के अंदर या पार्शियली मिक्स स्टेट के अंदर हर एक यूनिट कंपोनेंट का लाई करता है एज नियरली एज पॉसिबल विद द यूनिट ऑफ अदर कंपोनेंट. अगर ये स्टेट अचीव होती है तो थ्योरेटिकली एक आइडियल सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिसे हम परफेक्ट मिक्स कहते हैं. ये सिचुएशन नॉर्मली प्रैक्टिकेबल नहीं है क्योंकि और इनफैक्ट अननेसेसरी है क्योंकि समटाइम्स अनडिज़ायरेबल होती है. अगर हम इसे क्लोजली अटेम्प्ट करें और इस सिचुएशन को प्रिपेयर करने के लिए आइडियल सिचुएशन को अचीव करें तो ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रही है और ऑब्जेक्टिव मिक्सिंग ऑपरेशन के क्या कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें स्मॉल अमाउंट पोटेंट ड्रग की मिक्स करनी है एक पाउडर मिक्स में तो डिग्री ऑफ मिक्सिंग बहुत हाई ऑर्डर की होगी ताकि कंसिस्टेंट डोज को इंश्योर किया जा सके पाउडर मिक्स के अंदर. सिमिलरली, अगर हम दो इमिसिबल लिक्विड्स डिस्पर्स करते हैं या सॉलिड को डिस्पर्स करते हैं लिक्विड में तो वेल मिक्स प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके. जब लुब्रिकेंट्स ग्रैन्यूल्स के साथ मिक्स किए जाते हैं ड्यूरिंग टैबलेट प्रोडक्शन तो ओवर मिक्सिंग का डेंजर होता है क्योंकि ओवर मिक्सिंग सब्सीक्वेंटली वीक टैबलेट्स प्रोड्यूस करेगी जिनका इंक्रीज डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा. दैट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द टैबलेट्स. लेट्स नाउ डिस्कस द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. Mixtures may be categorized into three different types that differ fundamentally in their behavior. They could be positive mixtures. Positive mixtures are formed from materials such as gases or miscible liquids which mix spontaneously and irreversibly by diffusion and tend to approach a perfect mix. There is no input of energy required with positive mixtures if the time available for mixing is unlimited. Although input of energy will shorten the time required to obtain the desired degree of mixing. In general, materials which mix by positive mixing do not present any problems during product manufacture. The next type of mixtures are negative mixtures. With negative mixtures, the components will tend to separate out. If this occurs quickly, then there must be a continuous input of energy to keep the components adequately dispersed. For example, with a suspension formulation where there is a dispersion of solids in a liquid of low viscosity. With other negative mixtures, the components tends to separate very slowly. For example, emulsions, creams, and viscous suspensions. Negative mixtures are generally more difficult to form and to maintain and require a higher degree of mixing efficiency than do positive mixtures.
The third type of mixtures are called as neutral mixtures. Neutral mixtures are said to be static in behavior. That is, the components have no tendency to mix spontaneously or segregate spontaneously once there has been input of work to mix them. Examples of this type of mixture includes mixed powders, pastes and ointments. Neutral mixes are capable of demixing, but this requires energy input. It should be noted that the type of mixture can change during processing. For example, if the viscosity increases sufficiently, a mixture may change from a negative to a neutral mixture. Similarly, if the particle size, degree of wetting or liquid surface tension changes, the mixture type may also change. मिक्सचर्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, जो कि फंडामेंटली डिपेंड करता है मिक्सचर्स के बिहेवियर के ऊपर. फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव मिक्सचर्स. पॉजिटिव मिक्सचर्स गैसेस या मिसेबल लिक्विड से फॉर्म होते हैं और स्पॉन्टेनियसली गैसेस और लिक्विड्स मिक्स होती हैं और इरिवर्सिबली डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक परफेक्ट मिक्स अचीव होता है. इस टाइप के मिक्सचर के अंदर एनर्जी इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और जो अवेलेबल टाइम है अगर मिक्सिंग का वो अनलिमिटेड हो. अगर टाइम लिमिटेड है तो एनर्जी इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो सिर्फ टाइम को शॉर्टन करने के लिए होती है ताकि डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ मिक्सिंग कम टाइम के अंदर ऑब्टेन किया जा सके. जनरली स्पीकिंग मटेरियल्स जो मिक्स होते हैं बाय पॉजिटिव मिक्सिंग वो कोई प्रॉब्लम्स पोज नहीं करते ड्यूरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर. सेकेंड टाइप के मिक्सर्स नेगेटिव मिक्सर्स कहलाते हैं. नेगेटिव मिक्सर्स के अंदर कंपोनेंट्स सेपरेट आउट होते हैं. ये क्विकली अगर अकर हो जाए तो कंटिन्यूस इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ताकि कंपोनेंट्स को एडिक्वेटली डिस्पर्स रखा जा सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसा कि सस्पेंशन फॉर्मुलेशंस में जहाँ पर डिस्पर्जन्स ऑफ सॉलिड की जाती हैं लिक्विड के अंदर लो विस्कोसिटी के में कंटिन्यूस इनपुट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि सस्पेंशंस फॉर्मुलेट हो जाएं और स्टेबल रहें. नेगेटिव मिक्सचर्स जो कि डिफरेंट अदर टाइप के नेगेटिव मिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि इमल्शंस हो गई, क्रीम्स हो गई या विस्कस सस्पेंशंस हो गई, उनके कंपोनेंट्स बहुत स्लोली सेपरेट आउट होते हैं. नेगेटिव मिक्सचर्स जनरली डिफ़िकल्ट होते हैं फॉर्मुलेशन में और उनको मेंटेन करना और हाई डिग्री ऑफ मिक्सिंग को अचीव करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है देन पॉजिटिव मिक्सचर्स. थर्ड टाइप ऑफ मिक्सचर्स न्यूट्रल मिक्सचर्स. न्यूट्रल मिक्सचर्स स्टैटिक बिहेवियर रखते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स में ये टेंडेंसी नहीं होती कि वो स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो सकें और ना ही उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो स्पॉन्टेनियसली सेग्रीगेट हो सकें अगर इनपुट ऑफ एनर्जी इनकर हो जाए उन्हें मिक्स करने के लिए. तो इस टाइप के मिक्सचर्स की एग्जांपल में मिक्स पाउडर्स आते हैं, पेस्ट आती हैं और ऑइंटमेंट्स आते हैं. न्यूट्रल मिक्सर्स केपेबल होते हैं डीमिक्सिंग के लिए, लेकिन इनमें हाई इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है न्यूट्रल मिक्सर्स को डीमिक्स करवाने के लिए. टाइप ऑफ मिक्सचर चेंज हो सकती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. जैसा कि अगर विस्कोसिटी इंक्रीज कर दी जाए तो मिक्सचर नेगेटिव मिक्सचर से न्यूट्रल मिक्सचर की तरफ कन्वर्ट हो जाता है. इसी तरह से पार्टिकल साइज, डिग्री ऑफ वेटिंग और लिक्विड सरफेस टेंशन चेंज करती हैं मिक्सचर टाइप को. मूविंग ऑन टू द मिक्सिंग प्रोसेस. To discuss the principles of mixing process, a situation will be considered where there are equal quantities of two powdered components of the same size, shape and density that are required to be mixed. The only difference between them being the color. If the components are represented by colored cubes, then a two-dimensional representation of the initial unmixed or completely
segregated state can be shown here in figure A. From the definition of mixing, the ideal situation or perfect mix in this case would be produced when each particle lies adjacent to a particle of the other component. That is, each particle lies as closely as possible in contact with the particle of the other component. This is shown in figure B, where it can be seen that the components are evenly distributed as possible. If this mix was viewed in 3 dimensions, then behind and in front of each colored particles would be a white particle or vice versa. Powder mixing, however, is a chance process, and while the situation shown here in figure B could arise, the odds against it are so great that for practical purposes it can be considered impossible. For example, if there are only 200 particles present, the chance of a perfect mix occurring in approximately 1 in 1060, and is similar to the chance of the situation in figure A occurring after prolonged mixing. In practice, the best type of mix likely to be obtained will have the components under consideration as distributed as indicated here in figure C. This is referred to as a random mix, which can be defined as a mix where the probability of selecting a particular type of particle is the same at all positions in the mix and is equal to the proportion of such particles in the total mix. अगर हम मिक्सिंग प्रोसेस को डिस्कस करें तो हमें एक सिचुएशन कंसिडर करना होगी जहां पर इक्वल क्वांटिटीज़ 2 पाउडर कंपोनेंट्स की प्रेजेंट हैं और ये पाउडर कंपोनेंट्स सेम साइज, शेप और डेंसिटी के हैं जिन्हें मिक्स किया जाना है. इनमें डिफरेंस जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ कलर का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. एक ग्रीन कलर के कंपोनेंट्स हैं और एक वाइट कलर के कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको फिगर ए के अंदर शो हो रहे हैं. अगर कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाए कलर क्यूब से तो एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है इनिशियल अनमिक्स स्टेज में, जहाँ पर कंप्लीट सेग्रीगेशन है स्टेट्स की जो यहाँ शो हो रही है. अगर हम डेफिनेशन कंसिडर करें मिक्सिंग की तो आइडियल सिचुएशन या परफेक्ट मिक्स ये कहता है कि हर एक पार्टिकल लाई करेगा एज नियरली एज पॉसिबल टू द अदर पार्टिकल और कंपोनेंट, जो कि यहाँ फिगर बी के अंदर शोन है. और अगर हम इसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो हर कलर्ड पार्टिकल के पीछे एक वाइट पार्टिकल होगा और उसके बराबर में भी वाइट पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे, और सेम केस होगा वाइट पार्टिकल्स के लिए. पाउडर मिक्सिंग एक चांस प्रोसेस है, जैसे कि फिगर बी में शोन है. ये एक आइडियल सिचुएशन है. प्रैक्टिकली ऑड्स एग्जिस्ट करते हैं और अगेंस्ट होते हैं इस आइडियल मिक्सिंग के, और प्रैक्टिकल पर्पसेस के अंदर इस तरह की आइडियल मिक्सिंग को अचीव करना नियरली इम्पॉसिबल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक सिचुएशन कंसिडर करें जहाँ पर हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि 200 पार्टिकल्स हैं, तो चांस परफेक्ट मिक्स का अप्रॉक्सीमेटली 1 in 1060 होगा, और ये बिल्कुल इसी तरह से होगा सिचुएशन में. चांस जो प्रोलॉन्ग मिक्सिंग के बाद अचीव होगा, जैसा कि ये डी मिक्सिंग की सिचुएशन आपको ए फिगर के अंदर नज़र आ रही है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग बेस्ट टाइप ऑफ मिक्स जिसे ऑब्टेन किया जा सकता है उसमें कंपोनेंट्स कंसिडरेशन या कंसिडरेबल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होते हैं, जो फिगर सी के अंदर नज़र आ रहा है. इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम रैंडम मिक्स कहते हैं, जिसे अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल को सिलेक्ट करने की सेम होती है हर पोजीशन के ऊपर मिक्स में, और ये इक्वल होती है टू द प्रोपोर्शंस ऑफ सच पार्टिकल्स इन अ टोटल मिक्स.
Let's now discuss the mixing of or mechanism of mixing of powders and liquids. We will be discussing the mechanism of mixing of powders and liquids separately and in detail. In this lecture, we would be focusing on the discussion of powders. So, in order that powders may be mixed, the powder particles needs to move relative to each other. There are three main mechanisms by which powder mixing occurs, namely convection, shear and diffusion. Convective mixing arises when there is the transfer of relatively large group of particles from one part of the powder bed to another, as might occur when a mixer blade or pedal moves through the mix. This type of mixing contributes mainly to the macroscopic mixing of powder mixtures and tends to produce a large degree of mixing fairly quickly. Mixing does not, however, occur within the group of particles moving together as a unit, and thus in order to achieve a random mix, an extended mixing time is required. Shear mixing is another mechanism of powder mixing, and it occurs when a layer of material flows over one another, resulting in the layers moving at different speeds and therefore mixing at the layer interface. This might occur when the removal of a mass by convecting mixing creates an unstable shear or slip plane, which causes the powder bed to collapse, or in high shear or tumbling mixers where the action of the mixer induces velocity gradients within the powder bed and hence shearing of one layer over another. In order to achieve a true random mix, movement of individual particles is required, and this occurs with diffusive mixing. When a powder bed is forced to move or flow, it will dilate. That is, the volume occupied by the bed will increase. This arises because the powder particles becomes less tightly packed and there is an increase in the air space or voids between them. Under these circumstances, there is the potential for the powder particles to pass through the void spaces created either under gravitational forces, for example in the tumbling mixer, or by forced movement, for example in the fluidized bed. Mixing of individual particles in this way is referred to as diffusive mixing. All three mixing mechanisms are likely to occur in a mixing operation. Which mechanism predominates and the extent to which each occurs will depend on the mixer type, mixing process conditions, mixer load, speed, particle characteristics and flowability of the components of the powder. पाउडर्स को मिक्स करने के लिए पाउडर पार्टिकल्स को मूव करवाना होता है ताकि वो रिलेटिव टू ईच अदर आ जाए. तीन मेन मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू पाउडर मिक्सिंग की जा सकती है. These are convection, shear mixing and diffusive mixing. कन्वेक्टिव मिक्सिंग उस वक्त अराइज होती है जब रिलेटिवली लार्ज ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का ट्रांसफ़र होता है एक पार्ट पाउडर बेड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ. ये मोस्टली उस वक्त होता है जब मिक्सर ब्लेड्स या पैडल मूव्स करते हैं थ्रू अ मिक्स. इस टाइप की मिक्सिंग कंट्रीब्यूट करती है मैक्रोस्कोपिक मिक्सिंग ऑफ पाउडर मिक्सचर्स की तरफ, और ये लार्ज डिग्री ऑफ मिक्सिंग क्विकली अचीव कर लेती है. मिक्सिंग विद इन ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स अचीव नहीं होती. वो पार्टिकल्स जो कि मूव करते हैं टुगेदर एज अ यूनिट, और इसी वजह से रैंडम मिक्स अचीव करने के लिए एक एक्सटेंडेड मिक्सिंग टाइम रिक्वायर होता है. शेयर मिक्सिंग उस वक्त अकर होती है जब एक लेयर ऑफ मटेरियल फ्लो करती है एक दूसरी लेयर ऑफ मटेरियल के ऊपर, जो कि रिजल्ट करता है लेयर्स की मूवमेंट में, जो डिफरेंट स्पीड्स में मूवमेंट हो रही होती है. इसी वजह से मिक्सिंग
लेयर इंटरफेस पर अकर होती है शेयर मिक्सिंग में। ये मोस्टली उस वक्त होता है जब हम मास का रिमूवल कर रहे होते हैं बाय कन्वेक्टिव मिक्सिंग, जो कि एक अनस्टेबल शेयर या स्लिप प्लेन जनरेट करता है जो पाउडर बेड को कोलैप्स करवाता है। हाई शेयर और टम्बलिंग मिक्सर्स के अंदर जहाँ पर एक्शन मिक्सर्स का वेलोसिटी ग्रेडियंट इंड्यूस्ड होता है पाउडर बेड में, वहाँ शेयरिंग एक लेयर की दूसरी लेयर के ऊपर होना इजीली पॉसिबल है। अगर हमें ट्रू रैंडम मिक्स अचीव करना है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मूवमेंट रिक्वायर्ड है, जो कन्वेक्टिव मिक्सिंग और शेयर मिक्सिंग में नहीं हो रही। कन्वेक्टिव मिक्सिंग में मूवमेंट लार्ज ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की हो रही है और शेयर मिक्सिंग में मूवमेंट प्लेन्स में या लेयर्स में हो रही है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मूवमेंट डिफ्यूजिव मिक्सिंग के अंदर होती है, जहाँ पर पाउडर बेड को फोर्स किया जाता है कि वो फ्लो करे या मूव हो, जिसकी वजह से पाउडर बेड डायलेट होता है। जो वॉल्यूम पाउडर बेड में ऑक्यूपाई किया होता है वो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग मिक्सिंग, और ये पाउडर पार्टिकल्स को जो कि हाईली टाइटली पैक्ड पाउडर पार्टिकल्स होते हैं उन्हें लेस टाइटली पैक्ड पाउडर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो करता है, जो एक्चुअली ये चांसेस बढ़ाते हैं कि एयर स्पेसेस या वर्ड्स बने उन पाउडर पार्टिकल्स के बीच में। इन सर्कमस्टेंसेस में पाउडर पार्टिकल्स फ्लो करते हैं उन वर्ड्स में या एयर स्पेसेस में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जैसे कि टम्बलिंग मिक्सर्स में होता है, या फिर फोर्स मूवमेंट से जैसे कि फ्लूइडाइज्ड बेड के अंदर होता है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मिक्सिंग इस तरीके से डिफ्यूजिव मिक्सिंग कहलाती है। ये तीनों मिक्सिंग मैकेनिज्म्स मिक्सिंग ऑपरेशन के अंदर अकर होते हैं। कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेट करता है और किस एक्सटेंट तक मिक्सिंग को अचीव करवाता है वो डिपेंड करता है मिक्सर की टाइप के ऊपर, मिक्सिंग प्रोसेसिंग कंडीशंस के ऊपर, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और फ्लोएबिलिटी पाउडर कंपोनेंट्स के ऊपर। सो वील एंड दिस लेक्चर here. Let's conclude what we have discussed in today's lecture. We have discussed the importance of mixing, the definition of mixing, and the mixing process, as well as we have started the mechanism of mixing, in which we have learned the powder mixing mechanism. In next class, we will be discussing the mechanism of liquid mixing and powder segregation and demixing processes. If you have any question or queries, you can post it on HULMS. Thank you for patiently listening to this class. Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.